So I believe we have completed just the chapter number 1 first, right? Geography का first chapter हमने सिर्फ complete किया था. Okay, so we need to move towards the second chapter. So you got any doubt in the chapter number 1? Any doubt, anybody? Anybody? Like, okay, let's start with the chapter now. So first of all, I just like to tell you that we have covered just the field study part of the chapter 1, and what we are going to study is the chapter 2, which is location and extent. Okay, as you can see that there is a earth which is rotating around. So I believe you know what is it's called. This is called as North Pole. This is called as South Pole. एकदम end में जो है, okay, which consists of Antarctica, completely ice covered land, and there are many continents. Near about, say, we got 7 continents in the world, right? Okay, so what is location and extent basically? As you can see that there is a map behind it. So this is what we refer as an world map. So basically the earth. Okay, this part. Okay, just a moment. Why it's not going on? एक मिनट guys, एक मिनट. ये अर्थ को यहाँ पे हट जाना चाहिए था. वो क्यों वहाँ पे चिपका हुआ है पता नहीं. So I need to start it in some media gallery or something, like. Just a moment. डायरेक्टली चालू कर दिया था ना शायद, उसकी वजह से प्रॉब्लम. I don't read this all Bhagavad Gita and all. Okay, एक मिनट guys. Location and extent. ये क्या मत कर रहा मेरे फोन यार, कुछ हो जाता है ना. देखते हैं इसमें क्या दिखा रहा है ये. कि इसमें तो प्रॉपर दिखाएगा, डोंट वरी. इंटरनल. या इट्स हियर लोकेशन. ओके, चैप्टर का नाम लोकेशन डाल के रखा है, तो कहाँ से मिलेगा मुझे और कुछ ढूंढने पे. Over here, start again. This location and extent chapter we have come across. ये अर्थ क्यों नहीं हट रहा है बीच में से. ओके, स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी में हम बेसिकली 2 कंट्रीज से हम लोग डील करने वाले हैं. ओके, यू नीड टू गेस द नेम्स ऑफ द कंट्री. The first is the second largest populated country in the world. You need to guess the name of the country. ठीक है. It is famous for spices in the world. The cricket team is popular in sports, and this is the flag of the country. Indeed, this is our India. So obviously we are going to study about the India in the entire syllabus, and there is one of the country which is famous for samba dance. The country which is known as a coffee pot of the world. The football team is very popular in sports here, or like say football is the popular sports over here, you can say. And the football team is also popular in the world. This is the national flag of that country. Okay, can you name that country? What is the name of the country? Brazil. Brazil. Exactly, this is Brazil. So its second country is Brazil. So we are going to compare in the entire syllabus India with Brazil. Now, why only Brazil? Have you ever like got a question in your mind? Why every time we are going to compare in every chapter we are comparing with the Brazil? Not why not with the other countries? You got any reason? Like you got any idea about it? Maybe Brazil and India are quite similar. Exactly. There are many similarities between India and Brazil. In the terms of physiography is a land structure. In the terms of climate, in the terms of mountains, in the terms of rivers, in the terms of like standard of living of the people, in the terms of climatic condition as well. Okay, so let's start with this now. Equator divides the earth into northern hemisphere and southern hemisphere, as we know that already, right? So equator is a particular line, imaginary line again, which divides the hemisphere
sorry, a sphere into two hemisphere, which is northern hemisphere and southern hemisphere. As you know that the earth is a spherical body, not exactly a round body, right? Now, so equator is a line which divides it to two half. Northern hemisphere. Now let's talk about India. India lies in the northern hemisphere, ऑब्वियस है ना? अगर इक्वेटर यहाँ पे तो इसके ऊपर वाला लाइन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और नीचे वाला लाइन जो नीचे वाला एरिया है वो सदर्न हेमिस्फीयर है. तो इंडिया का लोकेशन कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. So India lies in the northern hemisphere. Now again there is an imaginary line which is called as prime meridian. You know about this line. This is prime meridian. So prime meridian divides the earth vertically into western hemisphere and eastern hemisphere. So India lies in the eastern hemisphere. So we can say that India is located in the north eastern hemisphere. See, equator के हिसाब से north में आते हैं और prime meridian के हिसाब से हम east में आते हैं. तो we are located in the north eastern hemisphere. There are many other several lines, you know that, ना? Latitudes and longitudes. मुझे बताओ latitudes कैसे होते हैं? Vertical होते हैं या horizontal होते हैं? Now this is a vertical line and this is a horizontal line. How are latitudes now? Latitude कैसे होते हैं? Horizontal के vertical? Hello, am I audible to you? Yes, sir. Okay, so I just asked a question. Either the latitudes are horizontal. Any idea? No idea? How many of you know that they are like latitudes are horizontal or vertical? None of you. Tanvi, any idea? Tanvi? Are you able to hear me? Hello, Tanvi? Yes, okay, she is replying now. Yes, she is able to. She got no idea. Sarvesh, what about you? No, sir. No idea. Okay. Rishika, any idea, beta? No, sir. No idea. Okay, not an issue. Not a great deal, यार. चलो यार, इसके लिए तो मैं हूं ना यहाँ पे. सी, अब बेड पे जब सोते हो तो वर्टिकली सोते हो या हॉरिजॉन्टली सोते हो? खड़े खड़े तो हम नहीं सो दोनों, I सकते ना. guess. नहीं, हम हॉरिजॉन्टली सोते हैं. बेड पे आप वर्टिकली होने का मतलब है कि आप खड़े रहते हो. तो डेफिनेटली आप वर्टिकली तो सो नहीं सकते ना. वी आर नॉट जिराफ्स. ठीक है. अब जिसकी हाइट ज्यादा हो तो आई एम नॉट श्योर अबाउट देम, बट मैं तो हॉरिजॉन्टली सोता हूँ भाई. मतलब हम बेड पे लेटते हैं. नॉट दिस लाइन, जैसे ये इक्वेटर है, इट इज अ लार्जेस्ट लैटिट्यूड, यू कैन से दैट इट्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड. इसके ऊपर जो लैटिट्यूड्स हैं, इमेजिनरी लाइंस, वो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होंगे. इसके नीचे जो लैटिट्यूड्स है, ऐसे बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस है विच आर कॉल्ड एज सदर्न लैटिट्यूड्स. उसी तरह जैसे ये प्राइम मेरिडियन है, ये सबसे लॉन्गेस्ट, वी कैन से दैट इट्स अ लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड. तो जो लंबे लंबे हैं, लॉन्ग लॉन्ग है, उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा. जो लेटे हुए हैं उनको लैटिट्यूड कहा जाएगा. इज दैट सिंपल, इजी, याद रहेगा अभी? लंबे लंबे लॉन्गिट्यूड, लेटे हुए लैटिट्यूड. ठीक है. सो वी कैन से दैट इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. नो, ये हमारा पूरा एशिया है, पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है. उसमें इंडिया सबसे साउथ पार्ट में लोकेटेड है. अब आपको ये तो पता है ना बेटा, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है. जैसे जम्मू कश्मीर हमारा नॉर्थ साइड में है और चेन्नई और श्रीलंका कहाँ पे हमारे साउथ में है. तो वैसे भी यहाँ पे मैप में जगह कभी भी मैप देखोगे ना तो पहले सिंबल देखने ना कि उसका नॉर्थ साउथ कहाँ पे. तो यहाँ पे आपको क्लियरली मालूम पड़ा कि भाई नॉर्थ ऊपर साइड और साउथ
नीचे की तरफ है। देखो ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये लॉन्गिट्यूड्स है, ये प्राइम मेरिडियन है जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना आपको बीच में, ये लॉन्गिट्यूड्स है, प्राइम मेरिडियन है। ये बाकी जो उसके बाजू में आपको दिख रहे हैं लंबे लंबे, वो सभी लोग लॉन्गिट्यूड है। अब ये रहा इक्वेटर आपका, सॉरी ये है इक्वेटर लंबा वाला, और बाकी जो है वो सब लैटिट्यूड्स हैं। तो ये इमेजिनरी लाइंस हमने बनाए हैं, अपने लास्ट ईयर में वो चैप्टर पढ़ा था, याद है, इंटरनेशनल डेट लाइन, 11th अपना 9th Yes, स्टैंडर्ड में। yes. तो इंटरनेशनल डेट लाइन हमको यही सिखाता है कि जब आप ट्रैवल करते हो, स्पेशली फ्लाइट्स के लिए, तो फ्लाइट्स में जब पायलट जब प्लेन उड़ाता है, ही नेवर फाइंड्स राइट एंड लेफ्ट कि भाई कहाँ कोई सिग्नल होगा कि भाई मेरे को यहाँ से लेफ्ट लेना है, यहाँ से राइट लेना है। वो जो पायलट्स है वो इन्हीं इमेजिनरी लाइन के कैलकुलेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस फॉर जस्ट फॉर ट्रैवल पर्पस, एंड बाकी चीजें भी यूज होती है। अब लैटिट्यूड हमारा क्लाइमेट डिसाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूड हमारा टाइम जोन डिसाइड करता है कि हम किस किस जगह पे कितना बजा होगा अभी, राइट। देखो नीचे क्या है ना, टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द ग्लोब द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड। अब आपने कभी व्हाट्सएप में जाओ, अपने फ्रेंड को, अभी नहीं बाद में जाना, अपने फ्रेंड को अपना ये व्हाट्सएप लोकेशन भेजो। whenever you send a WhatsApp location to your friend, you might find some degrees, कुछ calculations लिखा होता है। those are nothing but latitudes and longitude का calculation होता है। तो today I will teach you that location time। ये लंबे वाले latitude हो गए, ओके। ये जो लेटे हुए हैं, जो longitude है कौन से वाले हुए, ये जो खड़ी लाइंस है, जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस है वो longitude है, जो लेटी हुई लाइंस है वो latitude है। आई डोंट माइंड इफ यू टेक पिक्चर्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फ्री टू डू दैट। एटलीस्ट आपको जब टेक्स्ट बुक आप पढ़ने बैठोगे तो यू विल फाइंड इट इजी। डू यू वांट मी टू रन इट फ्रॉम द स्टार्ट अगेन, सो दैट आप जो मिस आउट किया अपना वो स्क्रीनशॉट ले लो आप। यस सर। ओके, जस्ट मोमेंट गाइस, मैं स्टार्टिंग से वापस आता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ से चालू होगा वापस, ठीक है। फिर स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, हम यहाँ से चालू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट इंडिया, कि इंडिया में क्या क्या चीजें फेमस है। On each slide, I will be waiting for 2 to 3 seconds so that you take a screenshot of it. This for Brazil. ठीक है, नहीं, here you can start. Okay. Okay, click now. Click now. One second, one second, one second. Click now. Click now. Click it. Click now. अब बच्चों ये अगर आप अपने टेक्स्ट बुक को देखोगे ना, तो ये एक एक लाइन कवर किया है आपके टेक्स्ट बुक में से। आई हैवंट एनी सिंगल मिस्ड आउट एनी सिंगल लाइन, ठीक है। आई हैव कवर्ड ऑल द सिंगल ऑल द लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, जस्ट आई हैव प्रेजेंटेड इट इन अ फोटोजेनिक फॉर्म सो दैट यू कैन रिमेंबर दोस थिंग्स। आपको याद रहेगा फिर ये चीज, ओके। Now, according to the latitude and longitude, let's see the location of India.
the latitudinal extent of mainland India. Now, what is mainland? This part, which we already draw as an India. This, the biggest part. ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है? यहाँ से लेके यहाँ तक का और यहाँ से लेके एकदम नीचे तक का. तो उसके अपार्ट फ्रॉम दैट मेनलैंड के अलावा क्या है हमारे पास? ये है ना बेटा, आइलैंड्स. ये लक्षद्वीप आइलैंड है, यहाँ पे अंडमान निकोबार है. यू कैन फाइंड दिस, राइट? तो हम मेनलैंड की अगर गिनती करें तो लैटिट्यूड वाइज कहाँ से कहाँ तक है? इट लाइज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. अब बोलोगे सर नीचे तो साउथ आता है, वहां पे साउथ होना चाहिए, दोनों जगह पे नॉर्थ नॉर्थ कैसे? डिड यू गॉट दिस क्वेश्चन इन योर माइंड? या एनीवन कैन एक्सप्लेन मी व्हाई इट इज नॉर्थ नॉर्थ? समझा मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ ये नॉर्थ है, तो ये 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, ये तो बरोबर है लैटिट्यूड. बट यहाँ पे नीचे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ क्यों है? वहां पे तो साउथ होना चाहिए ना. क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों है, या आपके पास आंसर है ऐसा क्यों है? एनी आइडिया? कम ऑन यार, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखो यार, मुझे Maybe कॉन्सेप्ट पढ़ाने में कंटाल आता है. maybe because India is located in the northern hemisphere. मे बी, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट? Um, Yes, it I is. guess I'm sure. No, your guess is very right. It is just because of the latitudes above the equator are all called as northern latitudes. So that's the reason if we count, देखो हम हमेशा हमेशा ना छोटे से बड़े पे जाते हैं. तो इक्वेटर से जब आप ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो सबसे पहले आप किससे टकराओगे? 8 डिग्री वाले लैटिट्यूड से आप टकराओगे, बरोबर है? तो 8 डिग्री लैटिट्यूड से हमारा इंडिया की काउंट शुरू हो जाती है. 8 डिग्री 4 मिनट्स. इफ यू फ्लाई फ्रॉम द प्लेन, अगर प्लेन का पायलट बोलता है कि भाई मैं इंडिया में लैंड नहीं करूंगा और आपको अगर इंडिया में उतरना है, तो आप बोलोगे भाई ठीक है मेरे को पैराशूट दे, मैं उड़ी मार रहा हूँ. अब इसका मतलब थोड़ी है तुम कहीं भी जाके उड़ी मार लोगे. तो पायलट को बोलोगे ना भाई इंडिया कब चालू होगा तो मेरे को बता देना. तो पायलट क्या बोलेगा? भैया 8 डिग्री हम क्रॉस करेंगे, 4 मिनट तक मैं फ्लाई करूंगा, उसके बाद मुझे बताना, तब मैं आपको बता दूंगा कि आपको उड़ी मारना है. बट कहाँ तक इंडिया है? अब तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक इंडिया है. उसके बाद अगर आप उड़ी मार रहे हो तो बेटा तुम चाइना में या अफगानिस्तान में जाके गिरोगे, राइट ना? तो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ तो 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, वहां तक ये. नॉट टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें, अगेन छोटे से बड़े में काउंट करना हमको, यानी वेस्ट से ईस्ट जाना है हमें, ठीक है? क्योंकि प्राइम मेरिडियन यहाँ पे है, तो प्राइम मेरिडियन पे क्या होता है? 0 होता है. सिमिलरली इक्वेटर पे भी 0 होता है, ठीक है? तो द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ टू 97 डिग्री 25 मिनट्स नॉर्थ. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इसमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड सब मिल जाएगा. ठीक है, पक्का? जरा याद कर लो, मैं पूछने वाला हूँ यार. लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों एक्सटेंट पूछूंगा मैं आपको, फटाफट याद कर लो इसको. सबको पूछूंगा. डन? पक्का? स्क्रीनशॉट में देखे मत बोलना मुझे. कि मैं पहले इसको बंद कर दूं. I put it that
chapter into my mail so that मैं कहीं पे भी इसको access कर पाऊँ, कहीं पे भी मैं इसको find out कर पाऊँ. Okay, so where are you guys? Over here. Okay. Joyson, Yes, sir. yes. What is the longitudinal distance of India? Just longitudinal, not latitudinal. 36 degree. No. Longitudinal बोला बेटा, लंबा लंबा प्राइम मेरिडियन की तरफ से. Okay, I'll give you 2 minutes to all of you. Just see the photo again and let me know. I will be asking again. ठीक है? Jason, get it done again. Done? चलो. Now who will be the lucky draw partner? The lucky draw would be of Divisha. Yes, sir. बोलो बेटा. What is the latitudinal distance of India? 8 degree 4 minutes north to 37 degrees 6 minute north. Very good. Sabash. Okay. चलो, next person is Sarvesh. Yes, sir. Longitudinal. 68 degree Hmm? 7 minutes east Hmm? to 97 degree 99. 97 Okay. 97 minutes 97 degrees 25 minutes east. Okay. Fine. Thank you, Sarvesh. Praneet. Hello, Praneet. Praneet. Okay. तो ये प्रणीत लगता है अपने ख्यालों की दुनिया में है. ज्योतिका. Yes, sir. बोथ बेटा. लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोथ. सर मैंने क्या पाप किया है, मेरे को क्यों दोनों पूछ रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है ना. सर मैं तो अभी ज्वाइन हुई. सो Yes, फनीएस्ट पार्ट क्योंकि ना ना आपकी. सर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चला गया था और फिर उसके बाद मैंने अपने ग्रुप में देखा कि मैम बोल रही है 2 बजे का लेक्चर है और मैं अभी ज्वाइन कर रही हूँ. सो बैड यार. ठीक है. तो ट्राई टू कवर अप. ओके, टू मिस आउट हुआ है. यस सर. ओके. आपकी स्कूल उठाओगे. अंशिका. Yes, sir. लाइट गया है. ब्लेड No, जॉइन. no, sir. No, no. अच्छा यू दैट. फाइन. बोलो बेटा दोनों फिर. The latitudinal में 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north, and the longitudinal में 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minutes 5 minute east. तो ये एक चीज वेरी गुड अंशिका. ये एक चीज आप सभी लोग क्लियर कर लो कि
लॉन्गिट्यूड में दोनों ईस्ट होगा और लैटिट्यूड में दोनों नॉर्थ होंगे। ठीक है, ये याद रखो बिकॉज ये मैच द फॉलोइंग या ऑब्जेक्टिव्स के लिए आता ही है। नाउ आई कैन नॉट राइट से दैट कि आता ही है। द रीजन इज लास्ट 2 ईयर से जब ये पढ़ा रहा हूँ, लाइक ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं क्यों द प्रीवियस ईयर जब मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर दैट इज, तो कोरोना का जस्ट वो अपने यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह डिक्लेयर हो गया था, इट वाज वेरी एट अ हाई पीक। तो बोर्ड वालों ने ज्योग्राफी का ही पेपर कैंसिल कर दिया था, मेरी नसीब खराब है मतलब। और लास्ट ईयर तो भाई यू पीपल आर लाइक दोज पीपल वर लकी, उनका एग्जाम ही नहीं हुआ पूरा। बट आप लोग का गुड लक है, आपको एग्जाम देने मिलेगा। मन में सोचते रहोगे सर काय का गुड लक, नहीं बेटा गुड लक है इधर से। क्यों बोलो, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। रीजन ये है कि 2 साल के बच्चे लोग को ऐसे निकाल दिया है, राइट है। एंड पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसा आया कि आप ही सोचो, आप एग्जाम देके जो भी मार्क्स कमाओगे वो आपकी मेहनत है, बट बोर्ड किस क्रिया पे मार्क्स देगा उनको? अगर 9th के बेसिस पे मार्क्स दे रहे हैं, मान लो किसी बच्चे ने 9th में उतनी मेहनत नहीं की हो या किसी भी रीजन से अगर उसको 9th में परसेंटेज कम आया है, ही वुड हैव वर्कड वेरी हार्ड इन 10th, वर्कआउट किया रहेगा, बट वो फायदा नहीं है ना फिर। या फिर फ्यूचर में बोलेंगे तो यार कोरोना का टाइम का रिजल्ट है यार, मान लो मैं सबको ऐसे पास कर दिया था, तू भी पास हो गया, तो दैट वोंट हैव दैट पर्टिकुलर वैल्यू जो आपको एग्जाम दे के जो रिजल्ट मिलता है उसमें। गेटिंग? तो बी प्रिपेयर्ड, डोंट टेक इट वेरी लाइटली और डोंट लूजन अप योर स्टडीज एंड ऑल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। नाउ ये तो आपको अच्छी तरह याद हो गया, बट जैसे मैंने बात किया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास 2 आइलैंड्स भी हैं, एक लक्षद्वीप आइलैंड्स है, टुवर्ड्स द अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल की तरफ अंडमान निकोबार है। एज यू कैन सी इन द मैप, मैं निकोबार आइलैंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर मैं वापस पीछे अगर जाऊँ यहाँ पे इस वाले मैप में, तो आप देखोगे मैं जो जूम कर रहा हूँ पार्ट, अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे दिख रहा है आपको एकदम एक, यहाँ पे एकदम नीचे ये अंडमान है, निकोबार है ये, राइट है ना। तो ये तो मेन लैंड की गिनती की ना हमने, जहाँ पे अपना चेन्नई को टच होके जो लाइन निकल रही है, बट ये आइलैंड्स भी तो इंडिया का ही पार्ट है ना। तो नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, द 4 मोस्ट पॉइंट, जो अपना सबसे पहला पॉइंट है इंडिया का, अवे फ्रॉम द मेन लैंड, in this mainland India is a southern tip of India called Indira Port in the Nicobar Islands. अब इसकी गिनती क्या है? It is 6 degree 45 minutes north, parallel to the equator. Parallel मतलब यहाँ पे parallel to the equator. तो आपने जहाँ पे पढ़ा था 8 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ, राइट ना, वहां पे ये 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ आपका इंडिया का सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप आइलैंड्स को काउंट करोगे तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन नाउ। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द नेबरिंग कंट्रीज, हमारे पड़ोसी कौन है, सीज कितने हैं, ओशंस कितने हैं इंडिया के, आप चाहिए तो एक साथ में मार्क कर लेना। The first country is Pakistan, Afghanistan, and Arabian Sea to the west. Just mark it out. Pakistan, Afghanistan, एंड अरेबियन सी है हमारे वेस्ट में। वेस्ट में क्या क्या है वो बोला, आप बोलोगे सर अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के वेस्ट में, हमारे कांटेक्ट में किधर है? तो हमारे कांटेक्ट में यहाँ पे देखो, एकदम यहाँ पे, मैं कर्सर हटाऊंगा तब देखना वहां पे, ठीक है, एकदम जम्मू कश्मीर में, एकदम देखना वहां पे टॉप में देखना, कुछ पार्ट अफगानिस्तान का अपने यहाँ पे टच हुआ है, कुछ पार्ट, ठीक है। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, वेस्ट में हमारे पास क्या क्या है। टू द नॉर्थ वी गॉट चाइना, नेपाल एंड भूटान, चाइना, नेपाल एंड भूटान, जस्ट मोमेंट, ठीक है। तो ये हमारे नॉर्थ में आता है, ठीक है।
Now, talking about the west part, we got Myanmar, Bangladesh, and Bay of Bengal as a sea part. ठीक है, म्यांमार हो रहा, बांग्लादेश ये रहा बीच में, and then Bay of Bengal. ठीक है, and to the south we got Sri Lanka, Indian Ocean, Maldives, and Indian Ocean. I just mark it out. Sri Lanka, इंडियन ओशन एकदम नीचे टिप में दिख रहा है, मैप में कवर नहीं हुआ, आई एम सो सॉरी फॉर इट, एंड मालदीव्स. ठीक है, मालदीव्स आइलैंड है जहाँ पे लोग पिकनिक वगैरह के लिए जाते हैं, एंड द इंडियन ओशन एट द साउथ. सो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन व्हिच इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया दैट वी गॉट एन अपना खुद का ओशन है यार. ठीक है, क्लियर. द ऑफिशियल नेम ऑफ कंट्री इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. जो हम इंडिया इंडिया करते हैं ना, पूरा एक्चुअल नाम जो है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. न सिर्फ दिल्ली नहीं है, न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है. जैसे मुंबई नवी मुंबई है, वैसा उनका न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल बन गया. ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन में अगर देखा जाए, वी गॉट नियर अबाउट 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. 29 स्टेट्स हो गए ना डिवाइड होके. ठीक है, तो ब्राजील के चालू होने के पहले आई गेस आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. इंडिया का एक बार फटाफट रिवाइज कर लो आप पूरा स्क्रीनशॉट्स में, एंड देन वी मूव ऑन टू दी ब्राजील पार्ट. गॉट एनी डाउट प्लीज आस्क. बिंदास बिंदास पूछ सकते हो. किसी ने अगर स्टार्टिंग के स्क्रीनशॉट्स मिस किए होंगे तो प्लीज आपस में शेयर कर लेना. डन. एनी डाउट अबाउट इंडिया? So shall we move to the Brazil part? चलिए ब्राजील में. Yes, sir. sir. Okay, right. Now Brazil का location, extent and boundaries. Now if you can see that some part of Brazil lies in the northern hemisphere and the most of the part lies in the southern hemisphere. Now where is Brazil basically? I'll show you. ये जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है. ठीक है, सदर्न अमेरिका जिसको हम कहते हैं. अब इस सदर्न अमेरिका में ये जो ग्रीन वाला पार्ट आप लोग देख रहे हो, ग्रीन वाला पार्ट, ये इतना बड़ा पार्ट, दैट इज ब्राजील. इसका कुछ हिस्सा अगर ध्यान से देखो, चलो मैं जूम करके देखता हूँ एक बार, पॉसिबल है तो. यस, तो इक्वेटर के, ये इक्वेटर है हमारा, इक्वेटर का कुछ हिस्सा ऊपर ब्राजील का है और ज्यादातर हिस्सा उसका वैसे साउथ में है. ठीक है, आई बिलीव यू आर टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स. अब ले लो चाहिए तो, ये ज्यादा अच्छे से समझेगा आपको. सो दिस इज ब्राजील, जिसको मैंने ब्राजील का फ्लैग कलर ही दे दिया, इजी पड़ेगा समझने के लिए. तो ऐसा अगर देखा जाए तो ये किस एरिया में आ रहा है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, बरोबर ना. लॉन्गिट्यूड वाइज ये किस में आ रहा है, वेस्ट पार्ट में आ रहा है. इंडिया कहाँ आ रहा है, इंडिया ईस्ट पार्ट में आता है. ये रहा इंडिया और ये रहा अपना ब्राजील. तो प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ब्राजील वेस्ट में आता है और हम ईस्ट में आते हैं. तो ब्राजील इज अ वेस्टर्न कंट्री. नाउ हम सिर्फ साउथ अमेरिका को हाईलाइट कर रहे हैं. ब्राजील लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर. सदर्न हेमिस्फीयर में जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, सॉरी साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, पूरा पूरा साउथ अमेरिका है. ठीक है, उसमें ऊपर वाले हिस्से में यानी नॉर्थ वाले हिस्से में आता है आपका ब्राजील. ठीक है, the latitudinal extent of mainland of Brazil is 5 degree north, sorry 5 degree 15 minutes north to 33 degree 45 minutes south. अब बोलोगे सर इसका नॉर्थ साउथ कैसे आ गया, इसका नॉर्थ साउथ इसके लिए बेटा क्योंकि ये इक्वेटर है ना. यहाँ पे बीच में, यहाँ से ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपको,
ये लाइन इक्वेटर है, अगर ये इक्वेटर है तो डेफिनेटली इसके ऊपर के लैटिट्यूड क्या होंगे, नॉर्थ होंगे, और ये इक्वेटर है इसके नीचे के लैटिट्यूड क्या होंगे, साउथ होंगे। इसके लिए ये नॉर्थ और साउथ में दोनों में गिना जाएगा। ठीक है, आई बिलीव यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ प्रीवियस वन। तो कितना है, 5 डिग्री 15 मिनट्स नॉर्थ टू 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ। नाउ टॉकिंग अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, अगेन प्राइम मेरिडियन से आते हैं छोटे से बड़े की तरफ। 34 डिग्री 45 मिनट्स वेस्ट, ऑब्वियस है वेस्ट में ना, टू 73 डिग्री 48 मिनट्स वेस्ट। तो देखो ये वाला वेस्ट वेस्ट बरोबर है, हमारे यहाँ पे ईस्ट ईस्ट था, इनके यहाँ पे वेस्ट वेस्ट है, बट हमेशा अगला छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। जैसे यहाँ पे आप 5 डिग्री 50 मिनट्स नॉर्थ से लेके आप 33 डिग्री 45 मिनट्स साउथ तक आए थे। तो यू नीड टू रिवाइज इट वंस। चलो फटाफट ये चारों को रिवाइज कर लो, जैसे इंडिया क्या किया था वैसे मैं आपको पूछ रहा हूँ। ठीक है, आई गिव यू 2 मिनट्स टू रिवाइज। ओके, आई होप यू आर डन विद दिस। सबको याद हो गया? Yes, sir. गुड, चल पूछ रही एक हटा दूंगा। सुन, हेलो जॉयसन, Yes, sir. बोलो बेटा। लैटिट्यूड बोलो तुम, चलो। Uh, 5 degree 15 minutes north and 33 degree 45 minutes south. ओके गुड, देखे बिना बोले, बिना देखे बोला, बिना देख के। वेरी गुड। ओके, पिछली बार का लापता इंसान वापस पूछ लेता है इसको। प्रणीत, आर यू देयर? हेलो, वैसे इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखा हो भाई, ये लड़का गुम गया है ख्यालों में अपने। आकाश, आपको ना माइक दिख रहा है, आप सुन भी पा रहे हो कि नहीं पता नहीं। आकाश, नहीं पता। अंशिका, Yes, sir. लॉन्गिट्यूड बोलो बेटा। Longitude हम्म, 34 degree 34 degree 45 minute west to 73 degree 48 minute west. ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। Now neighboring countries of Brazil that lie in the north are French Guiana, north में इसके। So this is French Guiana. Sorry. बेटा एक मिनट, नॉर्थ में कैसे आ गया ये फ्रेंच गुयाना? वो दो वहां पे दिखा रहा है, चील दिखा रहा है, इक्वाडोर सिखा रहा है, ऐसे कैसे भी? फ्रेंच गुयाना तो इसका यहाँ पे आता है, मतलब मैंने माइट भी मार्क नहीं किया है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, मैंने नॉर्थ वाला मार्क नहीं किया शायद से इसमें। ओके, आई लेट यू नो, फ्रेंच गुयाना यहाँ पे है, ये रहा, मेरे को गायना है गायना। ओके, दिस इज फ्रेंच गुयाना। ठीक है, नॉर्थ में फ्रेंच गुयाना है, Sir, सूरीनेम है। हाँ बोलो बेटा। you haven't shared your screen. आई एम सो सॉरी, मैंने शेयर किया था, माइट भी वो बाजू में ये आता है ना इसका
ये जो बाजू में आया ना, ये स्टॉप शेयर, और ये बाजू में एक छोटा सा देखो ये वेबएक्स का सिंबल, वो शायद उसमें हाथ लगा रहेगा तो बंद हो जाता है वो। ओके फाइन, डोंट मार्क दिस वन। एक में इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, को मैं आपको बताता हूँ, इसका लेना आपको स्क्रीनशॉट, जाना आ गया अभी, ठीक है। नॉर्थ में इसके फ्रेंच गुयाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से डायरेक्टली, ठीक है। नॉर्थ में क्या क्या है, इट्स फ्रेंच गुयाना ये वाला, देन सूरीनेम, फिर ये है गुयाना, ओके। फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना, पेनिनसुला, ये इनके नॉर्थ में, ठीक है। ये 4 कंट्रीज जो है वो नॉर्थ में है इनके, ठीक है। एंड डोंट सी अबाउट इट, हाँ ये रहा बरोबर है, एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब इनका अटलांटिक ओशन जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अटलांटिक ओशन है, बट उन्होंने डिवाइड किया है नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, ठीक है। अब मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, ये देखो वापस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अभी 2 मिनट को, उसको कंप्लीट होने दो पूरा, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना, सूरीनेम, गुयाना एंड वेनेजुला एंड नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिस पार्ट, ये है इनके नॉर्थ में। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। पता नहीं पिछला स्लाइड इनकम्प्लीट जैसा क्यों है, समझ में नहीं आया मुझे भी, ठीक है। नाउ टू द वेस्ट लाइज कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड परागे, ठीक है। ये इसके वेस्ट में है, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना एंड परागे। नाउ अबाउट पेरू के बारे में आपको बता दूं कि जो पेरू है ना, आपका जो मालूम है अमेजोन रिवर जो है सबसे बड़ा रिवर है, वो पेरू से ओरिजिनेट होता है, ब्राजील का रिवर नहीं हो, बट एग्जैक्टली बहुत ज्यादा हिस्सा ब्राजील में कवर होता है, जस्ट ओरिजिनेशन जो पॉइंट है वो पेरू से है उसका। टुवर्ड्स द साउथ लाइज द उरुगे एंड साउथ अटलांटिक ओशन, देखो नॉर्थ अटलांटिक यहाँ पे था, साउथ अटलांटिक यहाँ पे, तो ये इनके साउथ में सिर्फ एक ही कंट्री है विच इज उरुगे, क्योंकि ब्राजील ऐसा है ना, यहाँ पे किसका खत्म होता है, तो मैं कर्सर हटाऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। ये देखो ये इस तरफ खत्म होता है ना, तो उसके नीचे एक ही कंट्री है, ये बाकी सब वेस्ट में आ गए इसके, और ये जो कंट्री है वो उरुगे जो है वो इसके साउथ में आता है, ठीक है। तो साउथ में सिर्फ 2 ही पार्ट है इनके पास, एक है उरुगे और दूसरा आपका साउथ अटलांटिक ओशन। जस्ट लेट मी गो बैक, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन नाउ। यार ये क्या हो रहा है, रुको ये, हाँ ठीक है। Now the official name of Brazil is Federative Republic of Brazil. इंडिया क्या कहता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यह है फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। व्हाट इज मीन बाय फेडरेटिव, फेडरेटिव मतलब which is assumed, which is very similar, we can say that, ठीक है, that is called as federative. It has 27 states and 1 federative district, that is capital Brasilia. Federative district मतलब again we can say that जैसे अपने यहाँ पे न्यू दिल्ली जो है ना, that is not a state, बहुत छोटा सा हिस्सा है, अगर दिल्ली आप मैप में ढूंढोगे ना तो इट इज काउंटेड इनटू यूनियन टेरिटरी, वो यूटी में आता है, यूनियन टेरिटरी में आता है। उसी तरह इनका एक फेडरेटिव डिस्ट्रिक्ट है जिसको इन्होंने कैपिटल बना दिया ब्रासीलिया के नाम से। और वैसे भी यहाँ पे इनके यहाँ पे कितना स्टेट्स है, 27 है, अपने यहाँ पे डिवीजन किया करके अपने यहाँ पे 29 है, तो एक्चुअली अगर देखो तो अपने यहाँ पे भी सॉरी Sir, हाँ बेटा बोलो। you gave the countries of south, west, and north. What about east? ईस्ट में तो कहाँ है, ईस्ट में तो कुछ है ही नहीं ना बचा, यहाँ पे वही है ना, ये है सीज है ना, अटलांटिक ओशन है ना, नॉर्थ अटलांटिक एंड साउथ अटलांटिक, ईस्ट में कुछ नहीं इनके, Okay, ठीक है। thank you. Now let's see about the history of India. When we talk about India, now let's check out the history of India. India was under the British rule for almost 1.5 century, that is 150 years. बराबर ना, 150 years तक इंडिया ब्रिटेन के यानी ब्रिटिश के कब्जे में था।
द ब्रिटिशर्स एंटर्ड इंडिया एज अ ट्रेडर। शुरुआत कैसे हुई थी? यस, वो ये बोल के आया था कि हम ट्रेडर्स हैं, हमको ट्रेड करना है, हम ईस्टर्न कंट्री से प्रोडक्ट खरीदते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज को बेचते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ के राजा लोग आपस में लड़ाई करते हैं, कब्जा करते हैं एक दूसरे की जमीन, एक दूसरे को मारते हैं और अपने राज्य को एक्सपैंड करने की सोचते हैं, हमेशा अपने डायनेस्टी को एक्सपैंड करने की सोचते हैं, तो उन्हें बोला यार ये बहुत अच्छा मौका है, जब ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो क्यों ना हम इनके ऊपर कब्जा करके बैठे। सो जस्ट एज बिकॉज इनके पास एमुनेशन थे, जैसे मतलब गन्स वगैरह थे तो दे सेड दैट कि भाई तुम लोग तलवार से लड़ोगे, इससे अच्छा तुम लोग गन से लड़ो। वो राजाओं के खुश करने के लिए वो गिफ्ट वगैरह लेके आते थे, लोग महंगे महंगे गिफ्ट लेके आते थे। एंड दे ऑल एंट्रेंस वर मेड फ्रॉम दी कोलकाता साइड, एक नवाब थे, उनके वजह से सब प्रॉब्लम हुआ। उनकी तरफ से कैसा हुआ कि सिराजुद्दौला आई गेस का प्रॉब्लम हुआ था कि उनको जो नेबरिंग राजा अटैक करने वाला था, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे लेकिन उसके बदले में आप हमें यहाँ का मतलब होता है रूलर बनाओगे, भले रूल तुम करोगे बट जो हम ऑर्डर्स देंगे वही तुम करना यहाँ पे। एंड दैट वाज द एंट्रेंस ऑफ द ब्रिटिश इनटू इंडिया। अब ये जो लोगो आप देख रहे हो ना, बड़ा सा दो लायन है, जो ये वाला लोगो है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, बस यही लोगो था उनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हो ना, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्डिंग है। उस ईस्ट इंडिया कंपनी की बिल्डिंग के नाम पे ये लोग ट्रेड तो करते थे बट उन्होंने अपनी आर्मी भी बना ली थी। After a very long freedom struggle, India got its independence on 15th August 1947. काफी आपको पता है हिस्ट्री अपना क्या है, might have studied. तो 15th August 1947 को हमको आजादी मिल गई फाइनली। After independence, India adopted federal parliamentary republic type of government. तो हमने फिर बाद में अपनी गवर्नमेंट बनाई, रिपब्लिक गवर्नमेंट बनाई, which is for the people, to the people and by the people, कहने के लिए सिर्फ you know the fact. After independence, India has faced several problems. अब ऐसा नहीं कि भाई इंडिपेंडेंस मिल गया तो हम एकदम से सब कुछ सही हो गया, उसके बाद भी हमें पे काफी दिक्कतें आई, काफी प्रॉब्लम्स आई। That there were 3 wars between India and Pakistan। ऑब्वियसली दूसरा फ्लैग पाकिस्तान का दिख रही हो, ठीक है। काफी वॉर्स हुए थे, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, इंडिया चाइना वॉर हुआ था। फमाइन सिचुएशंस, ये बंगाल फमाइन है। अब ये मैंने बहुत ढंग के फोटो फिर भी ली है, बंगाल फमाइन का आप जाके ना गूगल में देखना। अगर आप बहुत बोलते ना इमोशनल नहीं हो and you cannot get hurted very easily, you can view that photos। वरना ऐसे ऐसे फोटोज है ना गाइस कि लाइक आप बोलोगे यार उस टाइम पे सच में खाने की कमी हो गई थी, अपने यहाँ पे फूड नहीं था उतना, कई लोग मर गए सिर्फ हंगर से, भूख से मर गए थे। एंड वो जो फोटोज देखो ना, लिटरली इट्स डिस्टर्बिंग। ये फिर भी मैंने ढंग का फोटो निकाला था उसमें से। ये टुडे इंडिया इज मेजर डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज के जमाने में अगर देखा इतना काफी दिक्कतें गुजरने के बाद, इवन ये कोरोना वायरस का तो आप देख ही रहो, बट स्टिल इंडिया इज रिकवरिंग इट। उसी तरह इंडिया इज वन ऑफ द मेजर डेवलपिंग कंट्रीज। यस, हम अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज में ही गिने जाते हैं। सॉरी इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ग्लोबल मार्केट, और इंडिया ग्लोबल मार्केट भी है बिकॉज कई कंट्रीज के प्रोडक्ट, कई कंपनीज के प्रोडक्ट अपने यहाँ पे मिलते हैं, और उसी तरह हमारे भी कंट्री के प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में बेचे जाते हैं। एज यू नो दैट कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, स्पाइसेस वगैरह हो गए, ये अपने यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं दूसरी कंट्रीज में, ठीक है। नाउ अबाउट द इकोनॉमिक स्टेटस अगर देखा जाए, बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप, मतलब स्पीडेड अप। तो इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी धीरे धीरे आगे बढ़ा है। अब फिलहाल करंट जो सिचुएशन चल रहा है उसमें तो हम थोड़े से पीछे है ही हैं, थोड़ा सा, इतना ज्यादा इम्पैक्टेड नहीं है, बट यस जहाँ पे दूसरी कंट्रीज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई वहां पे हम थोड़ा सा संभल गए हैं। टिल 1990 इंडियाज इंपोर्ट बिल्स वर हाई। 1990 तक हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता था, एक्सपोर्ट अर्निंग वर लो। अब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है,
हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो डेफिनेटली हम किस में थे, लॉस में थे, क्योंकि इंपोर्ट हम करेंगे तो हमको पे करना पड़ रहा था और एक्सपोर्ट हमारा कम था, दूसरे कंट्रीज हमारा प्रोडक्ट इतना ज्यादा नहीं खरीदते थे, तो हम हमेशा कर्जे में रहते थे, हमेशा हम लॉस में रहते थे। एज अ सोल्यूशन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस। अब ये इस चीज से सोल्यूशन पाने के लिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसके चलते हमारा जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। अब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यस, द proportion ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई। यंगस्टर्स अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा है। दूसरी कंट्रीज में कैसा होता है, या तो ओल्ड एज वाले लोग ज्यादा होते हैं या तो बच्चे ज्यादा होते हैं। अपने कंट्री में यंगस्टर्स यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनका बहुत ज्यादा है। तो यस, यू कैन से दैट हिंदुस्तान विल बी कॉल्ड एज यंगिस्तान, इट इज कॉल्ड एज, ठीक है। लेकिन मलिक मत देना किसी पेपर में। बिकॉज ऑफ द यूथ फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन, इंडिया इज लुक्ड अप एज एन यंग कंट्री। तो एक तरफ से ये इशारा ही है कि इंडिया को यंग कंट्री माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे यंग लोग ज्यादा है ना। नाउ कमिंग अप द ब्राजील। ब्राजील का जो नाम है ना, नाम तो भाई किसी मर्जी कुछ भी रख दे, इसमें किस क्या कहा जाता है कि नहीं। तो नाम ऐसा क्यों, ब्राजील ही क्यों है? तो सिंपल सा चीज है, ब्राजील कम्स फ्रॉम द पाउ ब्राजील, लोकल वुडेड ट्री। पाउ ब्राजील करके एक ट्री है वहां पे, लोकली बहुत ज्यादा है, इसके हिसाब से वो उसका नाम ब्राजील पड़ गया। शो यू द ट्री, एक मिनट को, ये पाउ ब्राजील मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब ये ट्री ना अपने यहाँ पे भी है, हाँ अपने यहाँ पे भी है पाउ ब्राजील। आप अगर सड़क के किनारे जाते हो, रोड के साइड में जाते हो, तो गुलमोहर के पेड़ आपने देखे होंगे, रेड फ्लावर्स होता है, नीचे गिरा होता है जमीन पे, फायर फ्लावर्स भी कहते हैं उसे। उसी तरह छोटे छोटे येलो कलर के फूल्स भी गिरे होते हैं, फूल्स मतलब फ्लावर्स, छोटे छोटे। और जो पेड़ है ना, दैट लुक्स लाइक गुलमोहर बट एक्चुअली इट इज पाव ब्राजील। यस, वही वो पाव ब्राजील है, जो येलो फ्लावर्स आपको रोड साइड में दिखते हैं पेड़ों पे। अब ब्राजील की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो मोर देन 3 सेंचुरीज यानी 300 साल तक ब्राजील वाज अंडर पोर्चुगीज रूल। पोर्चुगीज अपने यहाँ पे भी आए थे गोवा में, पहले उन्होंने गोवा को ही इन्वेड किया था, बट ब्रिटिशर्स इन नंबर्स ज्यादा थे तो ब्रिटिशर्स ने ही उन पोर्चुगीज को भगा दिया। बट यस, पोर्चुगीज ने ही 300 साल तक ब्राजील पे राज किया था। ब्राजील गेन इट्स इंडिपेंडेंस इन 1822। ब्राजील को अपनी इंडिपेंडेंस कब मिली? 1822 में। एक्चुअली हमसे पहले ही मिल गया। तो कब सेलिब्रेट होता है? ब्राजील इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 7 सितंबर। 7 सितंबर को इंडिपेंडेंस डे उनका सेलिब्रेट होता है। तो इंडिपेंडेंस डे इनका क्या होगा? 7 सितंबर 1822। क्लियर? फ्रॉम 1930 टू 1985, फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी, ऑब्वियस है ना, 55 years तक, इट वाज अंडर पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट में अंडर में थी, जैसे पाकिस्तान अभी है, जैसे चाइना अभी है। मतलब जो प्रेसिडेंट है वही पूरा मिलिट्री को भी रूल करेगा, ठीक है। और वी कैन से दैट मिलिट्री गवर्नमेंट है वहां पे, मिलिट्री जो बोलेगी वही चीज वहां पे होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, टुडे ब्राजील हैज फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। वहां पे अभी प्रेसिडेंट रूल चलता है, ऐसा ये सब नहीं है, मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स वहां पे नहीं है। दे डायरेक्टली हैव वन इज कॉल्ड प्रेसिडेंट। तो वहां पे अब क्या चलता है? प्रेसिडेंशियल रूल चलता है वहां पे। दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ ब्राजील। ये ब्राजील का पार्लियामेंट है एक्चुअली। इट हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के एंड तक, या एंड तक 20th सेंचुरी में, अभी हम 21st सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में ब्राजील बहुत मतलब कमजोर हो गया था फाइनेंशियली, बट दे हैव ओवरकम द ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। वो लोगों ने अपना कंडीशन को सुधार लिया। एज ए solution, the real plan was introduced by the government. तो गवर्नमेंट ने रियल प्लान इंट्रोड्यूस किया था। रियल प्लान इज
मनी प्लान, ठीक है। ब्राजील seen as a contributor to economic growth of the world and an important market in the future. ये जो शहर है, दिस इज रियो दी जेनेरियो, ठीक है। मैं आपको बाद में सिखाऊंगा इस चीज को। ये ब्राजील का सबसे फेमस स्टैचू है। अब पता नहीं है कितना फैक्ट है, कहा जाता है कि इस स्टैचू से वाईफाई रिलीज होता है इंटरनेट के लिए, जो पूरा ये जो एरिया है वो यूज करता है उसे। अब कहीं कहीं पे ये भी कहा गया है कि इनके जो हाथ है उनका मूवमेंट होता है। आई डोंट नो हाउ इज दैट, but don't know. Okay, let's contribute again. Concentrate towards study. So it is one of the contributor of the economic growth, and it's one of the important market in the future. Yes, future में काफी अच्छा market है ये. Yes, country इस पे grow होगी, and that's all for the day. But any doubt? Please speak. Yes, buddy. Any doubt? No, sir. Great. No, sir. Okay. So okay. Now next few chapter है अपना chapter number 3, which is physiography and drainage. That is one of the longest chapter of this syllabus. तो उसको खत्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। ओके, उसको खत्म करने के लिए हमको टाइम लगेगा, मतलब वो शायद अपने को 3 से 4 लेक्चर लग जाएंगे उसके लिए। सो एक सेकंड, एक सेकंड। आप लोग में से चर्च कौन जाता है? इस जॉयसन आप जाते हो? और एक वो चर्च का जो Yes. रहता है, ओके आपका है। तो आप कितने बजे तक फ्री हो जाओगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली? सर हम लोग का 8 बजे को शुरू होता है और 10 बजे को खत्म होता है। अच्छा, 10 बजे खत्म होता है। हम्म। तो चर्च तो नहीं जाना पड़ता ना, घर पे इसकी मतलब वो वीडियो कॉल अभी चल रहा है ना, वीडियो हाँ कॉन्फ्रेंसिंग। हाँ। ओके, तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर हम लाइक 10:30 के आसपास कुछ रखते हैं तो इज इट फिजिबल टू यू? Yes, sir. हाँ दीक्षा, बोलो बेटा। So next Sunday even I've got like my Sunday catechism school. Okay, so you So two it may got be that. like till 10 till 11:30 like that something. Oh, Or every nearing Sunday you go 12. to? Yes, Is that every every Sunday? Sunday. Yeah. Oh, From next Sunday okay, starting. okay, okay, not an issue. तो हमको ये टाइम फिक्स करना पड़ेगा। ये टाइम चलेगा आपको 2 बजे से लेके 2:30 तक सबको? Yes. Yes, Yes. sir. Okay, okay, fine. So we keep this time itself, okay? I was wondering if you can like early morning लेके खत्म कर दे तो आप भी आराम से पूरे संडे एंजॉय कर सकते हो, मैं भी। तो नॉट एन इशू, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बीइंग कंटिन्यूएशन लाइक 2 to 3:30 अपना चलेगा। Okay, so just revise it out the entire chapter. You got a screenshots of the particular chapters. ठीक है, अब टेक्स्ट बुक से मैच करोगे तो भी आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मैच हो जाएगा। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ टेकिंग टेक्स्ट बुक्स इन योर हैंड। आप आराम से इसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ओके, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।